I'm reading the question. This call is now being recorded. Sudhi Limited is incorporated on 1st of August 2013. From 1st April 2013, it purchased the business of Sushil Limited for rupees 8 lakh, out of which rupees 6 lakh 40,000 was paid by fully paid equity shares and the balance was paid in cash. Company also issued equity shares of rupees 6 lakh for cash to public. Stock of rupees 80,000, machinery of rupees 6 lakh, and debtors of rupees 50,000 are acquired from vendors. Purchasing company installed a new machine of rupees 4 lakh during the year 2013-14. Total cash sales were rupees 20 lakh. The sales per month in the first half of the year were half of what they were in the latter half year. The net profit of the company after charging the following expenses was rupees 1,80,000. Directors' fees rupees 40,000, office expenses rupees 15,000, preliminary expenses rupees 13,000, depreciation rupees 72,000, selling expenses rupees 36,000. Interest to vendors up to 31st August 2013 was 4,000. Closing stock is valued at rupees 80,000. Find out profit before and after incorporation. ठीक है, this is the question. और इस क्वेश्चन में half of the things we have done, जैसे कि इसमें भी हम लोग को रेशियो निकालना था, सेल्स रेशियो निकालना था, राइट, इंटरेस्ट टू वेंडर्स का जो रेशियो निकालना था, दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द लास्ट क्लास, इजंट इट? हम लोग ने किया था ना इसको लास्ट क्लास? यस मैम. तो वन ऑफ यू टेलिंग मी कि जो सेल्स रेशियो आया तो वो कितना आया था? हाउ मच वी हैव कैलकुलेटेड सेल्स रेशियो? 2:7. 2:7 का सेल्स रेशियो आया, ठीक है. और टाइम रेशियो क्या आ रहा है इसमें? व्हाट इज द टाइम रेशियो? 1:2. 1:2. वेरी गुड. 2:7 और 1:2, ठीक है, वेरी गुड. और कोई रेशियो हम लोग ने निकाला था इसमें लास्ट क्लास में? मैम इंटरेस्ट टू वेंडर्स का. हाँ, इंटरेस्ट टू वेंडर्स का कितना आया था? मैम 4:1. 4:1. ओके, ठीक है. ये 3 रेशियो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिए थे. आप लोग ने बना लिया था एलोकेशन के बेसिस पे प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन? हैव यू ऑल प्रिपेयर्ड? यस मैम. यस, एवरीवन हैज प्रिपेयर्ड. ओके, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग. आप लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे and you'll write statement showing pre and post incorporation profit. Those who have not done, please write down statement showing pre and post incorporation profit for the year ended 31st March 2014. For the year ended 31st March 2014. I hope everyone has done. Yes? You all have written? Yes ma'am. Okay. Now write down, make 5 columns. In the first column, write down particulars. Second column, total amount. Third column, basis of allocation. Fourth column, pre-incorporation, and fifth column is post-incorporation. Written? Yes ma'am. हो गया यहाँ तक सबका? Yes. Now, particulars में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? What do we write in particulars? Gross profit. Yes. So write down gross profit. Write down gross profit. Gross profit. Right? Yes, gross profit. सबसे पहले हम लोग gross profit लिखते हैं, ठीक है? First of all, we write the gross profit. We write the gross profit. Yes. Everyone has written the gross profit? सभी लोग ने gross profit लिख लिया है? Yes ma'am. ठीक है. gross profit के बाद आप लोग लिखेंगे, लेस कीजिए expenses को, less expenses.
less all the expenses. ठीक है, less all the expenses. एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आपने टोटल अमाउंट कितना लिखा था? ग्रॉस मैम प्रॉफिट 3,60,000. 3,60,000 ग्रॉस 60,000. यस, ग्रॉस प्रॉफिट में लिखिए 3,60,000. नेट बेसिस प्रॉफिट ऑफ में सारा एलोकेशन लिखिए उसमें. turnover to 2:7. हाँ, नेट प्रॉफिट में सारे ऐड कर देंगे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दिया था. यस, और इसका जो रेशियो आ रहा था वो 2:7 का आ रहा था. तो बेसिस ऑफ 2:7. एलोकेशन लिखिए 2:7 और उसको एलोकेट कीजिए प्री एंड पोस्ट कीजिए आप लोग इतना. मैम ma'am 80,000 and 3 का और 2,80,000. पोस्ट मैम 2 लाख. यस, ठीक है. अब इसको करने के बाद आप जो है देखिए एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस जो आपने जितना ऐड किया है वही सारा इसमें लिखेंगे. पोस्ट में 2,80,000. जी जी, एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस आप लिखिए पर्टिकुलर्स का. आई एम राइटिंग लाइक दिस. ठीक है, सबसे पहला लिखिए डायरेक्टर्स फीस. डायरेक्टर्स फीस, राइट डाउन directors fees. Director fees total amount is given 40,000. 40,000. डायरेक्टर फीस का कोई एलोकेशन होगा कि नहीं होगा? No ma'am. नो मैम. नो मैम, डायरेक्ट पोस्ट में चला जाएगा. ये डायरेक्ट पोस्ट में चला पोस्ट जाएगा. इन कॉर्पोरेशन. Yes, it will be posted in post and corporation period. तो राइट डाउन बेसिस ऑफ एलोकेशन डैश कर दीजिए, प्री इनकॉर्पोरेशन में भी डैश कर दीजिए एंड पोस्ट में लिख दीजिए सीधे 40,000. रिटन. Yes, ma'am. अब हम लोग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट लिखिए. इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट टू वेंडर्स मैम 4,000 है. 400. मैम 4,000. 4,000. इसका रेशियो हम लोग ने निकाला था ना इंटरेस्ट टू वेंडर्स का लास्ट क्लास में. Yes, ma'am. 4:1. 4:1. कितना आया था? यस, मैम 4:1 आया था. तो बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखिए. यस, 4:1 बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिखिए और 4:1 के रेशियो में इसको प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर दीजिए. मैम कीजिए आप 3,200 लोग. प्री. मैम 3,200 प्री एंड 800 पोस्ट. 3,200 और 800. ओके गुड. आप लोग बोलने आंसर्स देने के बाद ना आप लोग म्यूट हो जाए कीजिए. ठीक है. बेसिस ऑफ एलोकेशन. हो गया यहाँ पे. इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टू वेंडर्स हो गया. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 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 का कितना दिया हुआ है? मैम How much amount is 72,000. being हाँ, 72,000. इसको किस रेशियो में हम लोग एलोकेट करेंगे? Which ratio? 1:2. Time ratio में. वेरी गुड. टाइम रेशियो दिया हुआ है 1:2. प्लीज एलोकेट. 24,000 and 48,000. ओके गुड. नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस.
office expense. Ma'am, this is also in time ratio, 1:2. Yes. Ma'am 15,000 and ma'am 5,000 and 1,000. 10,000. 5,000. 10,000, 5,000 and 10,000 होगा बेटा. 1:2 Yes, I'm का sorry, ratio है. 5,000 and हाँ. 10,000. Yes. Director fees. I'm doing this on this whiteboard also. I'm trying to do for those जिनका कुछ छूट जाए अगर, so they can see. ठीक है. ऑफिस एक्सपेंस के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे आइए. कितना दिया हुआ है? 13,000. मैम Ma'am, 13,000 13,000 दिया हुआ है 13,000. और मैम सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चल जाएगा. यस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा पूरा पोस्ट में जाएगा, राइट? देखिए पोस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 13,000 है ना? Yes or no? मैम 13,000. 13,000. ma'am 13,000. 13,000, 13,000 है बेटा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज 13,000, 13,000 पूरा पूरा पोस्ट में जाएगा. हो गया यहाँ तक? यस मैम मैम. आपके डायरेक्टर्स हाँ बोलो. मैम डायरेक्टर से आप 4,000 लिखे हैं जबकि वो 40,000 है. एक सेकंड. यहाँ पोस्ट में मैंने सही लिखा है. यस यहाँ मैम पे मैंने टोटल गड़बड़ अमाउंट मैम अमाउंट में थोड़ा सा हाँ पोस्ट में मैंने सही लिखा है. टोटल में मैंने गड़बड़ लिखी है. जस्ट कितना हम रेक्टिफाई. अभी ठीक है ना? यस. Yes, आप लोग ने लिख लिया. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया. उसके बाद एक और एक्सपेंस बचा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 36,000. मैम वो Right. तो टर्नओवर में होगा. हाँ, ratio 2:7. और Yes, 28,000. yes, 2:7 के रेशियो में आप लोग एलोकेट कीजिए उसको. 8,000 Ma'am, and 28,000. 8,000 और 28,000. कर लीजिए. और करने के बाद नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए प्री एंड पोस्ट का. मैम प्री का 39,800. मैम आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए. मैम नेट प्रॉफिट मैम 1,80,000. हाँ टोटल नेट प्रॉफिट इज 1,80,000. ठीक है. मैम ओके. प्री इनकॉर्पोरेशन का 39,800. ठीक है. एंड मैम पोस्ट का है 14,200. 1,40,200. मैम 1,40,200. 1,40,200. यस. सॉरी 1,40,000. 1,40,000. 1,40,200. ठीक है. यहाँ तक जिन लोगों का हो गया है वो लोग कैश अकाउंट बनाइए. जितने लोगों का हो गया है, कैश अकाउंट बनाने से पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए. जितने लोगों का हो गया है, जिन लोगों ने कर लिया है, यहाँ तक प्रॉफिट निकाल लिया है प्री एंड पोस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए.
बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट? यस और नो? यस मैम, बन गया। ठीक है, बाकी लोग भी बनाइए। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस जो लोग देख रहे हैं बोर्ड को देख लीजिएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस है 2:7 के रेशियो में एलोकेट होगा। ठीक है, 8,000 बनाएंगे। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए। जो लोग व्हाइट बोर्ड पे देख के बना रहे हैं, क्लियर है? जो लोग व्हाइट बोर्ड पे देख के बना रहे हैं उन सभी लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, दैट इज 39,800 एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज 1,40,200। ठीक, अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि हम लोग को इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोला है। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? इज माय वॉइस ऑडिबल एनफ? Yes, ma'am. जी मैम। तो विल प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? क्या मैम? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या मैम? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, ma'am. जी मैम, बोलिए। हम स्लो आ रही है थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप लोग के सामने ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट सभी लोग बना लीजिए। ड्रॉ द फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सबको याद होगा, है ना? लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने इसको पढ़ा था। Yes, ma'am. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मैम ओपनिंग स्टॉक। यस, Ma'am, opening स्टॉक। यस। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द अमाउंट? 80,000। 80,000। देखिएगा Ma'am, आप, 80,000. हाँ, जहाँ पे आपका क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ एंड हो रहा है वहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ स्टॉक दिया हुआ है ना, स्टॉक ऑफ ₹80,000। नाउ दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक एक्चुअली। ठीक है, स्टॉक हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग क्या करते थे? टू परचेज। ये तो दिया नहीं है, Purchase. यही हम लोग को इससे निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट से, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग निकालेंगे। और टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग ने निकाला भी था ग्रॉस Yes, प्रॉफिट। ma'am. कितना निकाला था? 3,60,000। 3,60,000. 3,60,000। लिख लीजिए सभी लोग, 3,60,000। ठीक है, अब बाय में आ जाइए। बाय सेल्स सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, राइट? यस मैम। सेल्स, टोटल सेल्स कितनी दी हुई है यहाँ पे? मैम 20 लाख। 20 20 लाख रुपए. 20 लाख। हाँ, 20 lakhs। 20 lakhs लिख दीजिए।
ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट, 80,000. मैम 80,000. क्लोजिंग स्टॉक 80,000. 80,000। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई है ना, और बस आपको इससे क्या मिल जाएगा, फिर बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर आपका क्या मैम रिप्रेजेंट परचेज. करेगा, परचेजेस। 25। टोटल कितना है बताइए, मैम 25 20 16 लाख लाख 40,000 आएगा 80,000। परचेस। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसको लेस कर देंगे आएगा 16 लाख। मैम 16,40,000. यस 16 लाख 40,000, यस कहा गया, लेके 16 लाख 40,000। ठीक है, और ये आपका टोटल हो गया 20 लाख 80,000। हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चला, परचेजेस, जो कि हमारा क्या है, व्हाट इट इज, Purchases. बैलेंसिंग फिगर है ना, मैम बैलेंसिंग फिगर. ये दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, हमने निकाला है 16,40,000। अब हम लोग को क्या बनाना है, अब हम लोग को कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लीज पुट द हेडिंग कैश अकाउंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। कैश, ठीक है, कैश अकाउंट हम लोग बनाएंगे। कैश इक्व कैश अकाउंट में देखिए कहाँ कहाँ, अब कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड चीजें ही हम लोग लिखते हैं, इजंट इट। तो जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि on from 1st April 2013 it purchased a business of Sushil Limited for rupees 8 lakh, out of which 6,40,000 was paid by fully paid equity shares and balance was paid in cash। ठीक है, तो 8 लाख में से 6,40,000 जो है इक्विटी शेयर्स के तौर पे दिया गया, पे किया गया, और बाकी जो बैलेंस बचा 8 लाख 1,60,000। हाँ 60,000 कितना हो जाएगा, 1,60,000, मैम 60,000. 1,60,000, राइट। 8 लाख में से 6,40,000 हम लोग लेस कर देंगे तो आएगा हमारा 1,60,000। ठीक, और ये हमने क्या किया है, what we have done, we have given this मैम as a we have payment। paid. yes we have paid। ठीक है, तो बाय मतलब वेंडर हो paid। जाएगा, यस Yes मैम. Yes, ma'am. बाय वेंडर, तो बाय वेंडर लिखिए, बाय वेंडर अकाउंट, बाय वेंडर अकाउंट 1,60,000। ये सब तो समझ में आ गया ना कैसे आया है, हाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस फिगर 1,60,000। मैम हाँ यस, सुधीर लिमिटेड क्यों नहीं लिखेंगे? लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर आप वेंडर अकाउंट लिख रहे हैं तो क्योंकि ये ना आप इसको जो है हम लोग उसमें बना रहे हैं, क्या कहते हैं कि एज अ वर्किंग नोट हम लोग बस बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि हम लोगों को ये बनाना है, क्योंकि हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है ना तनु, तो बैलेंस शीट में हम लोग को ये सब चीजें दिखानी रहेगी ना अपने असेट्स में, राइट, कि हमारे पास कैश कितना है करंट असेट्स में एंड थिंग्स एज सच। आर यू गेटिंग द पॉइंट तनु? Yes, ma'am. तो यू कैन राइट सुशील, सुधीर लिमिटेड और नहीं क्या है, सुशील से लिया था ना, सुशील लिमिटेड ऑल्सो, यू कैन राइट वेंडर्स अकाउंट ऑल्सो, बोथ इज ओके, फाइन। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद इसने और क्या किया है,
परचेजिंग कंपनी इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन ऑफ ₹4 लाख। देखिए इसने मशीन भी खरीदी है 4 लाख की। इज इट? यस मैम। तो बाय Yes, sir. मशीनरी लिखिए, बाय मशीनरी। बाय मशीनरी, ठीक है। कितना है? 4 लाख है, राइट? Ma'am, 4 lakh. यस, लिख दीजिए 4 लाख। श्योर मैम। उसके बाद देखिए कंपनी ने कई सारे एक्सपेंसेस किए हैं, जहाँ पे लिखा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस, है ना। क्या क्या एक्सपेंसेस थे? डायरेक्टर्स फीस थी 40,000 की, एक्सपेंस था 15,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था 13,000 का, डेप्रिसिएशन था 72,000, एंड देन आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है 36,000 और इंटरेस्ट 4,000। हाँ, ये सारा एक्सपेंस। मैम डेप्रिसिएशन ऐड Yes, होगा ma'am. क्या एक्सपेंस में? हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं ऐड होगा। डायरेक्टर फीस आप लोग लिखिए एक जगह, ऐड कीजिए 40,000 डायरेक्टर। Depreciation हटा के. हाँ, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे हम लोग इसमें। मैंने वो क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस दिए हैं आई वाज रीडिंग दैट, जिसमें आपका लिखा हुआ था डायरेक्टर फीस 40,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000। मिल गया सबको जहाँ पे ये लिखा हुआ है? यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. तो उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे? डायरेक्टर फीस लिखिए 40,000, एक जगह नोट कीजिए। ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 13,000, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000 और इंटरेस्ट 4,000। सब मिला लीजिए। Ma'am, 1,08,000. 1 lakh. 1,08,000. हाँ, तो बाई एक्सपेंस कीजिए 1,08,000। बाई एक्सपेंस 1,08,000। हो गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बाद अभी हमने परचेज का हम लोग ने निकाला था बैलेंसिंग फिगर। हम लोग ने परचेज किया है ना 6,40,000 का, राइट? दे हैव डन दी परचेजेस और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। हाँ, तो लिखिए बाई परचेजेस। कितना निकाला है? Ma'am 16,40,000. 16 लाख। ठीक है। और तो कुछ इधर अब आएगा नहीं। अब हम लोग इधर देख लेते हैं। टू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही, कंपनी ऑल्सो इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 लाख फॉर कैश टू पब्लिक। 6 लाख का कैश में पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू किया है कंपनी ने। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। क्या ये
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। ठीक है, और सेल्स भी किया है, कितने की सेल्स किया है? 20 लाख की टोटल कैश सेल्स दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया है 20 लाख का, तो टू सेल्स कितना है? 20 लाख। ठीक है, टोटल कर दीजिए, 26 लाख हो जाएगा इधर। यस, आर यू ऑल राइटिंग? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. चलिए बताइए फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है? मैम 2,92,000। 2,92,000। गुड, बाय बैलेंस। कितना हुआ? 2,92,000। हो गया? कैश अकाउंट बन गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, तो कैश अकाउंट से हमें क्या पता चल गया? बैलेंसिंग फिगर कैश का पता चल गया। ठीक, अब हम लोग को फाइनली क्या बनाना है? व्हाट इज वी हैव टू बैलेंस मेक? शीट। बैलेंस शीट। चलिए, यस, सब लोग बनाइए बैलेंस शीट। राइट डाउन दी हेडिंग बैलेंस शीट। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, बैलेंस शीट ब्रैकेट में एज एट 31st March 2014। बना दिया? ठीक है, drawn the format everyone? Okay, particular and here amount. ठीक है, prepared everyone? Yes or no? यस मैम। हाँ, चलिए Yes, ma'am. यहाँ तक लिखिए। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमारी आती है Yes, वो ma'am. आती है बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी। तो लिखिए इक्विटी फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा है वैसे रोमन में 1 लिख के लिखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैम नोट नंबर का कॉलम नहीं बनाएंगे? नहीं, ठीक है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड
शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आता है आपका शेयर कैपिटल। ठीक, शेयर होल्डर फंड में लिखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया था? इक्विटी शेयर इशू किए थे ना, बताइए कितने किए थे? मैम 12,40,000। कैसे आया 12,40,000? 6,40,000 का फुली 6,40,000 का फुली पेड इक्विटी शेयर्स और बाकी 6 लाख के इक्विटी शेयर्स कैश में भी इशू किए थे, राइट? यस मैम। हाँ, तो टोटल कितना हो गया? 12,40,000। यहाँ पे बाहर वाले अमाउंट में लिख दीजिए, बाहर वाले कॉलम में 12,40,000। हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाउ मच नेट प्रॉफिट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? मैम 1,80,000। तो लिखिए, 1,80,000। हाँ, तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डाल के लिखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैं बता दे रही हूँ कैसे लिखना है, बाकी चीजें भी आप ऐसे ही लिखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है आपका 1,80,000। यहाँ लिख लीजिए 1,80,000 अंदर वाले कॉलम में लिखिएगा, ठीक है? 1,80,000। जो डिडक्शंस करना होता है वो हम लोग अंदर वाले कॉलम में करते हैं और जो फाइनल अमाउंट डिराइव होता है उसको हम लोग बाहर वाले कॉलम में लिखते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी हमारी नेट प्रॉफिट दी हुई है 1,80,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है? तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट जो हमारा आया है लेस, उसको हम लोग कर देंगे 39,800। तो यहाँ से 39,000 इसमें से लेस करेंगे 39,800। लेस कर दीजिए, फाइनल अमाउंट कितना आया? मैम 1,40,200। 1,40,200। 1,40,200। 40,200, ठीक? और इसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 13,80,200। 13,80,200, ठीक है? अब इसी तरह आप हेडिंग डालिए सेकंड, राइट डाउन रोमन नंबर 2 में सेकंड लिखिए और लिखिए असेट्स। उसी के नीचे जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना फर्स्ट, है ना? इसी तरह सेकंड लिखिए। अब राइट डाउन सेकंड असेट्स, हेडिंग डालिए असेट्स। written assets, everyone has written? यस मैम। असेट्स में सबसे पहले लिखिए नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स में सबसे पहला आपका असेट आएगा फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट में सब असेट आएगा आपका टैंजिबल असेट, है ना? फिक्स्ड असेट हमारे कितने तरीके के होते हैं?
How many types of fixed assets are there? मैम tangible and intangible. Tangible और tangible non and tangible तो non फिक्स असेट्स में intangible यस, तो फिक्स असेट्स में सबसे पहले लिखिए टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स के अंडर में लिखिए मशीनरी। मशीनरी कितने की मशीन खरीदी थी उसने? मैम 4 लाख की खरीदी थी और 6 लाख की पहले से 4 लाख की उसने न्यू मशीन इंस्टॉल की थी। और वेंडर से कितने की मशीन ली थी उसने? 6 लाख। 6 लाख। 6 तो लाख। टोटल मशीनरी कितने की होगी उसके पास? 10 लाख 10 लाख। तो लिख लीजिए मशीनरी लिखिए 10 लाख, अंदर वाले कॉलम में लिखिएगा 10 लाख। और मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट? डेप्रिसिएशन आपके डेप्रिसिएशन आपके इसमें दिया हुआ है 72,000। तो लिख दीजिए लेस डेप्रिसिएशन। 10 लाख में से 72,000 डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। जो अमाउंट आएगा उसको बाहर वाले कॉलम में लिखिए। मैम 9,28,000। मैम 9,28,000। एग्जैक्टली। तो ये आपके टैंजिबल असेट्स का हो गया। अब इनटैंजिबल असेट्स लिखिए। इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल असेट में कौन सी असेट होती है? मैम गुडविल। यस, गुडविल। Goodwill, अब आपको यहाँ पे गुडविल copyright. कैलकुलेट करना है। यस, गुडविल, कॉपीराइट, Advertisement. पेटेंट, ट्रेडमार्क, दीज आर ऑल इनटैंजिबल असेट्स, राइट? yes ma'am अब उसमें यस मैम। हाँ, उसमें आगे लिखिए गुडविल को कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट बनाइए। राइट डाउन अ वर्किंग नोट। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर याद कीजिए। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे? हम लोग देखते थे कि हमारी परचेज प्राइस और नेट असेट्स दोनों में से कौन सा ज्यादा है। अगर हम ज्यादा परचेज प्राइस देते हैं और नेट असेट्स हमने जो एक्वायर किया कम है, तब गुडविल आती थी। और अगर हमने नेट असेट्स ज्यादा एक्वायर किया है और हम परचेज प्राइस कम देते थे, तो हमारे लिए क्या हो जाता था? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हमने जो असेट्स एक्वायर किए हैं और जो हम परचेज प्राइस दे रहे हैं उसमें से कौन सा ज्यादा है? गुडविल ज्यादा है कि परचेज प्राइस, अरे सॉरी, असेट्स ज्यादा है कि परचेज प्राइस ज्यादा है? देखिए परचेज प्राइस इसने कितने दी है? 8 लाख दी है, राइट? कैपिटल रिजर्व 8 लाख में इसने, नहीं बेटा एक मिनट पहले देखो ध्यान से। 8 लाख में उसने जो है बिजनेस को परचेज किया है। और असेट इसने कितने एक्वायर किए हैं? देखो असेट्स में इसने एक्वायर किया, स्टॉक एक्वायर किया 80,000 का, ठीक है? 6 लाख की मशीनरी और 50,000 के डेटर्स, कितने हो गए इसके पास? मैम 7,30,000। 7 लाख 30,000 मैम। 7,30,000, ठीक है? तो हमारी परचेज प्राइस ज्यादा है और हमने जो हमने जो असेट एक्वायर किया है वो कम है हमारे पास। तो गुडविल होगा कि नहीं होगा? ये Yes. मैम होगा। कितना गुडविल आया? 70,000। 70,000। मैम 70,000। तो मैम 70,000। 8 लाख में से हमने जितने असेट्स एक्वायर किए थे उसको लेस कर दीजिए, तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो आएगा 70,000 और यही आपका गुडविल है। तो इनटैंजिबल असेट्स में गुडविल लिखिए 70,000, 70,000, ठीक है? और इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो हो रहा है उसको लेस कर दीजिए। लेस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट 39,800। नेट अमाउंट जो बचा 30,200, इसको बाहर वाले कॉलम में लिख दीजिए। रिटर्न यस मैम। यस सर। अब आ जाइए करंट असेट्स पे। अभी तक हम लोग नॉन करंट असेट्स की बात कर रहे थे, राइट? अब हम लोग बात करेंगे करंट असेट्स की। करंट असेट्स में पहला करंट असेट लिखिए ट्रेड रिसीवेबल्स। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग डेटर्स को ही सिर्फ, लेकिन डेटर्स नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल्स बाहर वाले कॉलम में लिखिए 50,000। इन्वेंट्रीज 80,000, इन्वेंट्रीज 80,000 एंड कैश इक्विवेलेंट्स
और मैम कैश 2 एंड lakh कैश इक्विवेलेंट हाँ, cash and cash equivalents 2,92,000. 2,92,000. हो गया? This is what we have done, right? यस मैम Yes, ma'am. Yes. Assets वाले को भी टोटल कर लीजिए, देखिए 13,80,200 आएगा. Okay. So with this we have finished this question, and the next class I'll start with shares and debentures. मैम क्वेश्चन पूछना था एक सेकंड.